14. Sickness in small business enterprise. कंटेंट फॉर द कोर्स। ये सभी कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले अपनी वीडियोस में। Contents for session 12. In this session, we are going to discuss the status of sickness of SSIs in India, causes of sicknesses, symptoms and cure of sicknesses. Discuss this topic. Introduction. The term sickness has been widely defined by various authorities, but as a matter of fact, so far the term itself has not received any universal recognition which could justify the concept of sicknesses in small scale industries. The major handicap has acted as a fuel in the failure of recognition of the actual state of sicknesses in the industries. A vagueness in a conceptual framework has contributed to confusion and has acted in a further deterioration of SSIs while recovering from all the ill health. It would be appropriate to examine critically some of the authoritative definitions and finally come up with the possible outcome suggestive of the structure of the concept. Now let's discuss the status of sickness of SSIs in India. Sickness in man is gradual process and does not develop suddenly. Similar in the case of industrial units. Therefore, in common plants, a sick industry is one which is not healthy, and a healthy unit is one which earn a reasonable return on capital employed and build up reserves after providing reasonable depreciation. A sick industrial unit may be defined as one where it fails to generate surplus on a continuous basis and depend upon frequent illusion of external funds for its survival. According to the Reserve Bank of India, that is RBI, a small scale unit should be considered as sick if it has, at the end of any accounting year, accumulated losses equal to or exceeding 50% of its peak net worth in the immediately preceding 5 accounting years. The Sick Industrial Company Act 1985 identifies sickness in terms of cash losses for 2 consecutive financial years and accumulated losses equaling or exceeding the net worth of the company at the end of the second financial year. Sicknesses in the industry therefore indicates more or less a perfect positive correlation with profitability, liquidity, and solvency. The reason of industrial sickness can be either internal or external. Now let's discuss the opportunities in the small scale sectors are enormous due to the following factor, that is less capital intensive, then extensive promotion and support by government, then reservation for exclusive manufacture by small scale sector, project portfolios, funding finance and subsidies, machinery procurements, raw material procurements, manpower training, technical and managerial skills, tooling and testing support, reservation for exclusive purchase by government, export promotion, growth in demand in the domestic market size due to overall economic growth, increasing export potential for Indian products. Let's discuss the causes of sickness. The most important causes of industrial sickness can be classified as external cause or internal cause.
Let's discuss the external causes. The external causes are beyond the control of the industry and usually affect the industry group as a whole. For example, non-availability of raw material or irregular supply or availability at a high price, or we can say that a general recessionary trend in the economics which affect the overall performance of the industrial unit, or high cost of production facing a low realization of sales revenue, irregular supply of virtual inputs such as power, water, transportation, etc., facial irregularities such as those possible in excise duty, import duties, etc., unfavorable changes in government institutional policies, industrial strike, unrest, etc., natural calamities such as drought, earthquake, floods, etc. These are the external causes of sickness. Now let's discuss the internal causes. Internal causes are the causes which are within the control of industry. It may be the outcome of some internal deficiencies or shortcomings in the various functional areas such as marketing, management, production, finance, etc. Most of the causes of industrial sicknesses are, however, due to the internal factors such as lack of control on key areas like management, finance, marketing, inventory, etc., shortage of working capital, improper demand forecast for the product to be sold, inappropriate choice of technology, non-flexibility of fixed assets, wrong location or layout of industry, a defective capital structure especially on account of delay, constructions and operation resulting in cost or overruns and non-budget browsing interest burden their firm. Let's discuss the more causes of sickness. First is mismanagement. A mismanaged unit is in fact a sick unit. Management must be intelligent, brilliantly capable, innovative, very efficient, and assuring. In most of the sick units, management fails to take proper decisions or routine matters. Important decisions regarding site selection, a production process, promotion avenues, marketing management, etc. can often ignored. Next main reason of sickness is marketing. Most of the sick unit suffers from insufficient marketing management. Small business generally adopt a traditional way of marketing where more in regarded as better. If marketing places a continuous reliance on it, the promotion of material consumption, it would lead to the prosperous stage of industrial growth. Next reason is poor information system. Extremely poor information and reporting system is a normal feature in SSIs, where accounting, cash flow planning, costing, budgeting control, breakdown, sales, revenues, financial statements, statement of chargeable current assets, etc. are not properly reported on a day-to-day basis. Causes energy problem. Shortage of power have been irreparable harm to SSIs in most of the states. Only a few years ago, some 2000 SSIs having nearly 20,000 workers were denied power by the Haryana State Electricity Board. Haryana State Electricity Board was blamed for its generally apathy towards the demand of SSIs, and it's resulted in the closure of these units. Then is improper technology. Obsolete technology and crude technology has been one of the major cause of sickness in small units.
frequent breakdowns, inefficiency in machinery performance due to inadequate maintenance, and delay in renovating or replacing the machinery is the normal feature in these industries. The situation is made worse when, instead of using the funds for depreciation or development rebates, these liquid funds are diverted towards new and unrelated activities. Next cause is overtrading. The firm grow at a faster rate than they are able to finance from internally generated cash flows and bank browsing. The firm focuses only on sales regardless of whether or not the same is profitable. Let's discuss the symptoms of sickness. Important signals to identify sickness is as under. First, absence or little movement in stock. Second, production and or sale witnessing falling trend. Third, frequent proposals for enhancements in credit limits. Fourth, persistent irregularity in cash credit amount. Fifth, negotiable instrument like bills, checks being or more often than non-returned unpaid. Sixth, the high drawing in cash by the browsing unit. Seventh, casual reconstruction of the firm at the short interval. Eighth, laxity in turnover of accounts. Ninth, frequent rejection of or structure about the goods supplied by buyers. 10. Those expenses which could be written off may go on increasing as they are not so far written off. 11. Labor problem. 12. Over-dependence on external funds. 13. Continuous increase in losses. 14. Denial on the part of the suppliers to supply raw material. 15. Unreliability in ensuring stock and other assets accurately or in time. Now let's discuss how to cure the sickness. Rehabilitation of a sick unit come under process only after the variability study of the concerned small unit recommends for its revival along with the suggested reliefs or packages or any other way out. Sicknesses need to be tackled with a great sense of urgency of commitment. Whatever the cause, the problem of rehabilitation calls for immediate attention of all the concerns. Emphasis in this regard should be on measures of the long-term nature rather than palliatives. There is indeed a pressing need to improve the skill base of small firms so as to upgrade the level of technical and journal education of workers. Apart from the improvement of theoretical instruction, efforts are required to upgrade the practical experience in collaboration with large industry, including public sector undertaking. So with these steps, you can cure the sickness. हमारे पंजाब प्रांत में विभिन्न प्रकार के स्मॉल स्केल बिजनेसेस चलते आ रहे हैं और चल भी रहे हैं। इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इनमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न बिजनेस आ जाते हैं। ट्रेडिशनल में फुलकारी मेकिंग और पिकल मेकिंग जैसे बिजनेस आ जाते हैं। आओ हम फुलकारी और पिकल मेकिंग बिजनेसेस में काम करने वाले लोगों से जानते हैं कि इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस में गिरावट का क्या कारण है। मेरा नाम सुखमीन बंगा है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर से आई हूँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हूँ। तो आप अपने बारे में, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताइए। जी, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
मैं इसकी फाउंडर हूँ। और ये हमारा ग्रुप है जो 2012 से काम कर रहा था। तो पहले ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ था, फिर लास्ट ईयर हमने इसमें जो हमारी प्रॉपर सेविंग थी पुरानी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उसके बाद हमने इस ग्रुप को अटैच किया है NCGY के साथ। तो अब हमारा जो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा था जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो उसमें हमने फुलकारी की जो ट्रेनिंग है अपने ग्रुप मेंबर्स को दवाई है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, जो जहाँ का NCGY का फील्ड प्रोजेक्ट था जो डिस्ट्रिक्ट का उसके अंडर। तो अब हमारा जो लेडीज़ हैं हमारी, जो आप जैसे देख रहे हो जो सब काम चल रहा है, तो जो लेडीज़ अब स्किल्ड हैं और जो हमारे ट्रेनर हैं और जो बाकी सब लेडीज़ हैं और जो हमारे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं। तो आपके पास कुल मतलब कितने प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं? अब ट्रेनर तो मैम हमारे पास एक ही है जो जिसने हमें ट्रेनिंग दी है, फुलकारी ट्रेनर। हाँ, ट्रेनर फुलकारी ट्रेनर नवजोत कौर। और ये हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं और ट्रेनर भी है। लेकिन अब ये सब स्किल्ड हो गए हैं, तो अब तो ये ऑलमोस्ट कह लीजिए सभी ट्रेनर ही हैं, क्योंकि इनके पास अब स्किल डेवलपमेंट का और इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट भी है। तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इसमें? इस ग्रुप में? हाँ जी मैम, इस ग्रुप में हमारे पास साथ 14 लेडीज़ हैं, 14 लड़कियाँ, मतलब लड़कियाँ और लेडीज़। तो आप ये अपना जो मटेरियल है वो सेल कैसे करते हैं? सेल में वैसे जो इन जनरल तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम रहती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, बट हमारे साथ थोड़ा सा इसमें कम प्रॉब्लम आती है। कह लीजिए कि जैसे हमारे जो ट्रेनर हैं वो भी काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, तो उनका अपना एक कस्टमर्स का है एक। तो जैसे हमें भी हमारा पहले जो ग्रुप चलता था उसमें हम और तरह के काम करते थे, तो वो भी हमारे पास है। बट फिर भी मार्केटिंग तो एक इन जनरल सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एक इशू है, मेजर इशू है। लेकिन इसके बारे में आपको हमारे सेक्रेटरी ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि वही डील करते हैं इस। आइए अब हम इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के और मेंबर्स के साथ बात करेंगे। तो आपका इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या रोल है, उसके बारे में बताइए और अपने बारे में। मैं इस अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2012 से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं एज ए मेंबर काम करती थी ग्रुप के साथ, फिर 2017 और 18 में मैं ग्रुप की एज ए सेक्रेटरी बनी और फिर मैं एज ए सेक्रेटरी अब काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इसकी मतलब जो आपके फैमिली प्रॉब्लम्स है वो कितनी आती हैं? जैसे आपके साथ ये मेंबर्स जुड़े हुए जो लोग हैं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? हमें जो प्रॉब्लम ग्रुप मेंबरों की तरफ से जो फेस करनी पड़ती है वो यही करनी पड़ती है कि इनके फैमिली मेंबर जो है वो इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। वो इनको जैसे टोंट मारते हैं कि तुम जाओगे फिर 4 दिन जाओगे फिर बैठ जाओगे, या फिर अगर हम इनको कहें कि आज हमने वहाँ अपना सामान सेल करने जाना है तो आप लोग जाओ, कैसे हमने 2 मेंबरों को बोल दिया कि आप जाओ, तो ये अगर जाएंगे तो इनके फैमिली मेंबर इनको बोलेंगे कि हाँ आप नहीं जाओगे, आप क्यों जा रहे हो, किसी और को भेज दे। ऐसे मतलब इनका ये है, लेडीज़ का खुद का भी है, 2-4% चाहती होती है कि हाँ हम खुद जाए, हम खुद सेल करें, लेकिन मोस्टली लेडीज़ का ये होता है कि हम घर में काम कर सकती है, लेबर कर सकती है, लेकिन हम बाहर सेल करने नहीं जाएंगे। आप हमें रॉ मटीरियल ला कर दो, हम सारा बना देंगे और आप हमारा सेल कर दीजिए। ठीक है, तो मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मतलब मार्केटिंग में जो हमें मेन दिक्कत आती है कि जब हम सामान बाय करने जाते हैं तब तो हमें वो कॉस्टली मिलता है, और जब हम सेल करने जाते हैं तो वो हमें उतना रेट नहीं देते। मतलब आपको रॉ मटेरियल जो है वो महंगा मिलता है ना, मतलब रॉ मटेरियल प्लस अगर हम वैसे भी कोई थिंग लेने जाए, मानो हम कोई बैग लेने जा रहे हैं वो हमें 200, 400, 500 का बोलेंगे, और अगर हम खुद का बनाकर उनको बेचने जा रहे हैं तो वो बोलेंगे 100 का, 50 का, ऐसे करते हैं। मतलब हमें हमारा प्रॉपर वो जो हमने मेहनत की है वो नहीं मिलती। ठीक है, तो आप इनको डेली बेच देते हैं? नहीं, डेली बेस नहीं देते। हमारा जैसे ग्रुप का होता है 6 मंथ में या फिर एनुअल में हम एक बार डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो मटेरियल है वो सब एक टाइम पे काम करते हैं सब? हाँ, जब हम अभी तो ट्रेनिंग लगी थी ग्रुप की जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की लगी थी, उसके कारण हम सब इकट्ठे काम करते हैं। लेकिन इन जनरल हमारे ग्रुप का ऐसा है कि जो मेंबर काम करेंगे हम उनको ही जो है हमारा जो भी सेल करके हमारे पास पैसा आएगा हम सिर्फ उन मेंबरों को प्रॉफिट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, उनमें जो काम करेंगे, जो वर्किंग कंडीशन में हमारे साथ जुड़े। ओके,
तो अब ये बताइए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं? हम जैसे फुलकारी दुपट्टे बनाते हैं, ऐसे सिंपल जो ऐसे दुपट्टे बनाते हैं फुलकारी के जी जे हम डाइनिंग टेबल रनर बनाते हैं, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान ही बनाया था। ठीक है। जैसे जो स्टार्टिंग में हमने जो लेडीज़ को ट्रेनिंग दी थी उनको हमने रुमाल दिए थे, उनको क्योंकि आती नहीं थी। स्टार्टिंग में जो हमने उनको ऐसे रुमाल दे दिए थे, तो जो उन्होंने निकाली थी उनको हमने ज्वाइंट करके जो डाइनिंग टेबल रनर बनाया है। और हम जो कुशन कवर बनाते हैं। तो ये इसका कपड़ा क्या है? जे है जूट फैब्रिक है। हाँ जी, जूट फैब्रिक। और हमने जो वाटर बॉटल बनाए हैं, हाँ, जूट बैग के ऊपर हमने ऐसे जो फुलकारी निकाली है। और जो स्लिंग बैग टाइप, जो हमने ऐसे स्लिंग बैग भी बनाया है। जो हमारे ग्रुप मेंबर ने ही ऐसे पहले इसके ऊपर फुलकारी की और फिर इसको ऐसे जो बना दिया। तो ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए और स्टिच करने के लिए अलग अलग मतलब लोग लगते हैं? इसके बारे में आपको ज़्यादा हमारे जो ट्रेनर है वही बता सकते हैं। फुलकारी ज़्यादा बनाते हैं ना, तो इसका रीज़न क्या है कि आपने फुलकारी चूज़ किया? इसका रीज़न ये है कि एक तो हमारी ट्रेडिशनल पंजाबी फुल एम्ब्रॉयडरी है फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग ये है कि जो हमारे फुलकारी है जो हैंड वाला वर्क है वो अलोप हो रहा है। जो मशीनरी की कढ़ाई है वो ज़्यादा अभी मार्केट में दिख रही है, तो हम इसको रिवाइव करना चाहते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल थी हाथ के साथ निकाली हुई वो हम करें इसको। तो बीइंग अ ट्रेनर आप ये बताइए कि ये जो फुलकारियाँ बना रही हैं ना, तो इसका कपड़ा क्या यूज़ होता है और एक फूल को बनाने के लिए टाइम कितना लगता है? मैम ये जो फुलकारी है बेसिकली खद्दर यूज़ होता है, जिसको हम बाग फुलकारी जब निकालते हैं तो उसका मेन मटेरियल होता है खद्दर कॉटन। और अनफॉर्चुनेटली जब मुझे ऑर्डर आया था तो मुझे खद्दर यहाँ पे दुआबे में नहीं मिला, मीन्स की होशियारपुर में नहीं मिला। हाँ जी, नहीं मिला, और मुझे ये कॉटन चूज़ करनी पड़ी। और ये जो मैं ये निकाल रही हूँ ये बाग फुलकारी है जो हमारे ट्रेडिशन को प्रेजेंट करती है, और ये बेसिकली खद्दर पे ही होती है। मुझे कॉटन चूज़ करना पड़ा। हाँ जी, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल रहा है। जी ठीक। हाँ जी। तो टाइम कितना लग जाता है? डिपेंड करता है साइज़ कितना है फूल का। मुझे जैसे ये एक स्क्वायर बनाने के लिए 1 घंटा पौना घंटा लगता है। ठीक है। तो ये फुलकारी की विड्थ लेंथ जो है ना वो सेम होती है सबकी? जैसे जब हम इसको चूज़ करेंगे, जैसे हम कोई फैब्रिक लेंगे, जैसे खद्दर लेंगे तो 3.25 मीटर लेंगे। जब उसको डाई कराएंगे थोड़ा श्रिंक हो जाएगा तो 2.5 मीटर के अब हो जाता है। जैसे आम दुपट्टे होते ही हैं 2.5, लेकिन जब सालू की बात आती है तो उसका जो विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल की होती है। हाँ जी। तो ये जो थ्रेड यूज़ करते हैं ना, इसका टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट है ना वो कितनी आती है? मैम जैसे इसमें जो एक रील है हमारी, इसका थ्रेड पट्ट का रेशम का धागा जो बोलते हैं वो यूज़ होता है। एंड उसमें अभी जो इनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो 15 रुपये की एक रील थी। अभी रिसेंटली जैसे हमारा अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर जो ट्रेनिंग दी है, अब जब हमने बाय किया तो वो 25 रुपये की मतलब रील आ रही है। अब देखो कितना फ़र्क पड़ गया, 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया। ठीक है। तो अब आपने ये जो फुलकारी बनाई है ना, तो इसको जब मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको सेल करने में? मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम इसको लेके जाते हैं, कॉस्ट नहीं हमें उतनी मिलती, प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट में मशीन वर्क, कंप्यूटराइज वर्क वाली जो फुलकारी अवेलेबल हैं जो इसका सब्स्टिट्यूट है। और ये देखिए आप, ये है फुलकारी जो कंप्यूटराइज है, जो मशीन वर्क उसको बोल सकते हैं, है ना। और ये है हैंड वर्क, है ना। अब इसमें हमने कंपैरिजन कैसे करना है, ये है मशीन वर्क वाली फुलकारी और इसका उल्टा साइड ये है। और जब हम हाथ वाली देखेंगे तो इसका ऊपर का स्टिच वैसे ऐसे ही सेम ही है, दोनों का ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है। कोई जिसको नॉलेज होगी वही जान सकता है। और ये देखिए, ये है डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ, ठीक है। ये देखिए, इसका जो स्टिच साइड ऐसा है और इसका उल्टा साइड ऐसा है।
ये सबसे बड़ा अंतर है। मतलब आपको वो प्राइस नहीं मिलता ना। हाँ जी, handmade लेकिन का। लोग समझ नहीं पाते। और जो हैंडवर्क है वो मतलब सभी पसंद नहीं करते, कोई कोई लोग हैं जो मतलब ये चीज़ पसंद मतलब करते हैं। प्राइस देख अगर के छोड़ पसंद देते हैं। करते भी हैं तो उनको वो प्राइस देख के छोड़ देंगे। ये तो इन जो 2 फुलकारी है ना, इसमें टाइम कितना लगता है? जैसे ये मशीनी वर्क है, ये हैंडमेड है ना, हाँ तो जी। टाइम कितना, डिफरेंस कितना है दोनों में? मैम ये तो मतलब मशीन का काम है जो तो मेरे हिसाब से एक दिन में रेडी हो जाती होंगी, और वो इकट्ठे ही काफ़ी सारे मतलब होते हैं, मतलब उनका जो भी होगा मतलब नंबर्स होते होंगे उसी के जी, हिसाब से ये निकल जाती quantity। है ना, क्वांटिटी होती है। लेकिन इसमें जो है 2.5 से 3 महीने तो लग जाते हैं जब हम सालू की बात करें तो। एक हाँ जी, महीना, 2.5 से handmade। 3 महीने। हाँ जी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट का है ना, प्राइस का हाँ जी, डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस होता इसमें है। क्या मतलब दिक्कत आती है मार्केटिंग में? क्योंकि ये हमारे हैंडवर्क की इतनी मतलब वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये जो मशीन वर्क है ये अवेलेबल है जी, उसका और प्राइस सब्स्टिट्यूट कम है। है। हाँ जी, हाँ जी, और प्राइस ये मैम मेरे ख्याल 1000 या 2000 में आ इतने में जाती आ है। जाती है। और इसमें हैंडवर्क थोड़ा हैंडवर्क जो है costly वो होता है। कॉस्टली होता है, मतलब हर कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन इसीलिए हमने ये सोचा है, एक इनोवेशन की है कि एक तो हम मतलब हमारा कल्चर प्रमोट होगा और हर एक बंदा इसको बाय कर सकता है। जैसे एक तो हमने सिंपल दुपट्टे बनाए हैं, जैसे उसमें थोड़े थोड़े टुकड़ों में हाँ जी फुलकारी की हुई है। मैं आपको एक सैंपल भी बताती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे दुपट्टे हाँ जी, ये दुपट्टे में की हुई है। और मतलब ये अफोर्डेबल होगा है ना, लेकिन घंटा इसमें भी 1 घंटा ही लगता है आपको निकालने। हाँ जी, मेहनत तो लगती है। और दूसरी बात ये कुशन कवर्स हैं, हमारे कुशन कवर्स हैं। इसमें भी ये जैसे एक छोटा सा हमने मोटिव दे दिया है फुलकारी का। एक तो फुलकारी प्रमोट होगी, दूसरी बात ये है कि कॉस्ट भी एक हर किसी इकोनॉमिकली होगा है ना, रीजनेबल प्राइस होंगे। तो अब जब आप ये अपने प्रोडक्ट्स है ना मार्केट में लेके जाते हैं, तो आपको जो आपकी लागत है वो पूरी हो जाती है उस प्राइस में? नहीं मैम, काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हर कोई बंदा मतलब वैल्यू नहीं करता हाथ के काम की, है ना। जिनको समझ है कि ये जो मतलब फुलकारी की कल्चर के बारे में पता है, वो तो हंस के दे देता प्राइस। लेकिन अगर आम मतलब आम लोगों की लोग बात करें तो हमें उतनी कॉस्ट नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए। प्राइस। तो आइए अब हम बात करते हैं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्किल वर्कर्स से। तो आप ये बताइए कि आपका इस ग्रुप में क्या रोल है? मैं इस ग्रुप में स्टिचिंग का काम करती हूँ। जैसे फुलकारी तो कंप्लीट हो जाती है ना, जो फुलकारी के बाकी प्रोडक्ट्स भी है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, बट उनको जो फाइनल टच देना होता है वो स्टिचिंग वाले मतलब ठीक है, आपने देना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आप फुलकारी को और बाकी जो प्रोडक्ट है ना उनको फाइनल टच देती हैं? हाँ जी। ये देखो, जैसे मैंने ये टेबल रनर तैयार किया हुआ है जी, तो ये जो काम है फुलकारी जो करते हैं उन्होंने कर दिया ना। जो जैसे ये पूरी फिनिशिंग है, लेस लगानी है, आउटर जो है ना वो आप करती हैं, वो सारा मैं करती हूँ। तो आप बताइए कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप में से लाभ क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? जैसे ਅਸੀਂ 200 रुपया पर मंथ हाँ जी देते हैं, तो जे सानू लोड़ पवे तो सानू ब्याज तो ते पैसे भी मिलते हैं, मतलब लोन मिल जाता है। हाँ, लोन मिल जाता है। और जब ये क्लोज किया था ना, बंद किया था तो हमें यानी कि ब्याज भी दिया, मतलब पूरे पैसे, हाँ पूरे पैसे मिले। हाँ जी, तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जितने काम? हाँ जी, हाँ जी, सबको दिया। तो ये थे अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के फाउंडर मैम इंद्रजीत नंदन। तो अब हम आगे एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ बात करेंगे। तो आज हम पहुँचे हैं होशियारपुर के एक रूरल एरिया में, जहाँ पर कुछ औरतें अपना पिकल मेकिंग का स्मॉल बिजनेस है जो चला रही हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनके इस बिज़नेस में क्या क्या गिरावट आ रही है और कौन सी रुकावटें आ रही हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो मैम, आपने जो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है पिकल मेकिंग का, आपको इसके लिए आइडिया कहाँ से मिला था? हमें आइडिया मिला था समिता सैनी से, वो हमारे पास आई थी। उसने बोला कि 10 मेंबर बनाओ। हमने 10 मेंबर बना लिए। फिर हम महीने का 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको मतलब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं ना हर मंथ।
पीस है। तो आप जो मटेरियल आते हैं ना पैकेजिंग के लिए, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है वो? ये तो कम नहीं पड़ता है, नहीं होता है, तो हमें भी चाहिए भी हमें पैसा मिले, कहीं से आए, हम कम करें। मतलब आप हाँ। जो लागत की लगती है ना वो प्रॉफिट निकलता नहीं ना? नहीं निकलता है। अब ये बताइए कि आपके इस बिजनेस में ना आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? हमें तो प्रॉब्लम बहुत आती है, पैसे की आती है, हमें सामान भी लाना पड़ता है, सामान भी महंगा है, डब्बे भी लाने पड़ते हैं, हर चीज़ लानी पड़ती है, तो औखा हो लगता है हमें तो काफ़ी। ये है भाई, हाँ जी, सानू कोई मदद मिले, सरकार वालों की मदद मिले, साडा बिजनेस चले और असीं घर बैठ के सारा ही घर में ही सारा बिजनेस करिए, घर में से ही कोई लेके जाए। तो इससे पहले हमने फुलकारी मेकिंग का जो बिज़नेस था उसे देखा, और ये पिकल मेकिंग का बिज़नेस है लेडीज़ का। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, ये लोन लेना नहीं चाह रहे, और क्योंकि इनका बिज़नेस स्मॉल है और उनको ये नहीं पता कि इनका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, और मार्केटिंग की बहुत प्रॉब्लम है, इनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो लोग स्मॉल बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इससे इनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही, और इनका जो बिज़नेस है वो लगातार लॉस में जा रहा है और इनके बिज़नेस में गिरावट आ रही है। इसलिए हमारी सरकार को यही अपील है कि वो इनकी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए जो है वो इनको सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।